Okay, so we are going to start our spoken English lecture 1 today. Acha ji. So class, the thing is that first of all we need to understand that how you can start speaking English, because that is the most important thing. Many people think that they cannot speak well, although they can do good grammar, they know about the structures, they know about the speaking things, but they hesitate. Okay, so first we will have to overcome their hesitation, and we will have to get through some tips and tricks that are tried and tested and that are with my own experiences, so that I have gathered them here. Okay, and I have been telling you these tips and tricks to improve your spoken English by now. Okay, by today. And the thing is that class, okay, when you follow these tips and tricks, you will be feeling much improvement in your speaking within few days. Okay, so the only the condition is that you need to follow these tips and tricks, and that would be starting with this tip, that is, do not hesitate. Okay, never hesitate, and do not think about the people. Okay, what do they think. Okay, sometimes we feel people will be laughing at me. So this is not the thing, because this is the job of the people. They make fun of others. Everybody make fun of others. Okay, so that's why you do not need to worry about them. You can transform your fear into action. अपना fear जो है वो action में transform करेंगे, hesitation नहीं लेकर आएंगे. और इसके लिए सबसे important चीज़ ये है कि just think कि nobody knows anything and you can just speak. When you have that confidence कि you can speak well, nobody else is going to do. Let's suppose if I have some activity in the class, okay, so at that time when I ask you to speak up on any activity, on any topic, so at that time you need to think in nobody knows English well, even myself. ठीक है, इवन कि आप ये सोचेंगे कि टीचर को भी जो है वो मैं उनके लेवल की इंग्लिश बोल सकती हूँ. ठीक है, सो दैट्स व्हाई व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, तो आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट जो है स्पीकिंग विदाउट हेजिटेशन, एंड दैट इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, आगे चलते हैं क्लास. नेक्स्ट टिप, that is really powerful tip. Okay, that is really powerful tip कि you can talk to yourself. Okay, when you start talking to yourself, some people have that habit by naturally they have the habit to talk to themselves. That is called soliloquy. This is the word soliloquy, that means to talk with yourself. Okay, when you talk with yourself, let's suppose कि you are going to have an exam tomorrow. Okay, and you start talking by yourself कि tomorrow I will do this and this and this. Okay, so after that you feel relaxed, because you have decided something with yourself, you have talked with yourself, and you feel relaxed with that. So just like that, when you talk with yourself in English, so you will be improving your words and your speaking power and your fluency too. Acha, you can talk with yourself while standing in front of the mirror like that, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, ये क्या एक्टिविटी है, अगर आप मिरर के सामने खड़े होके कुछ भी स्पीकिंग करते हैं, लेट्स सपोज डेली की रूटीन बता रहे हैं, या कोई भी आपने टॉपिक पे किसी पे भी लिखा है, आप उसको शेयर कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद योर सेल्फ. ये आपका आई कॉन्टैक्ट बनेगा अपने ही रिफ्लेक्शन से. इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. ठीक है, ये आपकी जो अनइंटेंशनली आपका कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आपकी स्पीकिंग पावर भी बिल्डअप होगी. एंड दैट इज़ अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी. जस्ट डू इट फॉर 1 वीक ऑन द डेली बेसिस. ठीक है, 1 हफ्ते के लिए इसे डेली बेसिस पे करें, एंड आफ्टर दैट यू विल बी फीलिंग द डिफरेंस. ओके, दैट इज सो पावरफुल एक्टिविटी. सो व्हेन यू डू इट, यू विल बी इम्प्रूविंग योर speaking power. Okay, so
You can do it. And after that, listen to English. Listening is the basic skill. Okay, when we want to develop any language knowledge or any language speaking, we need to listen to that language. आप किसी भी language को daily basis पे सुनना शुरू करें, चाहे वो कोई भी language हो, आपको वो language आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी और फिर आप उसे बोलना भी शुरू कर देंगे. ओके, सो लिसनिंग इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट पावरफुल सेंस किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. इफ़ यू लिसन टू इंग्लिश ऑन द डेली बेसिस, चाहे वो 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, और अपनी पसंद की चीज़ सुने. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द न्यूज़ तो न्यूज़ सुने. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वॉचिंग मूवीज़ तो उनके डायलॉग्स के साथ उसे देखें और सुने. एंड आफ्टर दैट इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन टू म्यूज़िक तो आप वो सुने. इट्स अप टू यू कि आप असल में चाह क्या रहे हैं. ठीक है, तो लिसनिंग टू इंग्लिश इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड लिसनिंग के साथ यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग टू, क्योंकि लिसनिंग जो है ना एक तरह से हमारे ईयर्स के साथ हमारे माइंड में ना हमारा इनपुट जा रहा होता है. जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं ना टाइपिंग करके या माउस के साथ, और कंप्यूटर से प्रोसेस करता है और हमें शो करता है मॉनिटर पे. तो ये हमारे कान के ज़रिए जो है हमारे माइंड में एक इनपुट जा रहा है और हमारा माइंड उसे उन वर्ड्स को प्रोसेस करता है, क्योंकि हमारा माइंड जो भी सुनता है उन वर्ड्स को वो प्रोसेस करता है, अपने अंदर रखता है, वो उससे निकालता नहीं है. हमें पता नहीं होता, ये अलग बात है. ठीक है, लेकिन हमारे माइंड में चीज़ें फीड रहती हैं. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग तो उसका जो आउटपुट है, उस माइंड में जो प्रोसेसिंग हुई है उसका जो आउटपुट है वो आपकी स्पीकिंग में नज़र आता है. तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि यू स्टार्ट लिसनिंग ऑन द डेली बेसिस टू योर इंग्लिश. आइदर you know just listen to the news, movies or music or anything else. ठीक है, you can record yourself while speaking. You have your gadget, that is your smartphone. So with your smartphone you can रिकॉर्ड योर सेल्फ. अब वो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे आपके वॉइस नोट्स जो हैं उनको आप सेव कर लें, अपने पास सेव कर लें, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपने सेंड करना है तो गो अहेड विद योर इंग्लिश नोट्स. ठीक है, और इसके अलावा यू कैन जस्ट सेव योर वॉइस नोट्स इन द रिकॉर्डिंग ऑप्शन, जो कि वॉइस रिकॉर्डर होता है, तो वहाँ पर भी आप सेव कर सकते हैं. अब इसमें भी आप अपने डेली रूटीन बताएं, आप कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो आप वो बात करें, लेकिन अपने आप को रिकॉर्ड करने से पता है क्या फ़ायदा होगा. वो ये होगा कि व्हेन यू रिकॉर्ड योर सेल्फ, आफ्टर दैट यू लिसन टू इट. आप उसे सुनेंगे तो आपको अपनी गलतियाँ खुद समझ आएंगी कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में गलती की है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल इम्प्रूव इट. ठीक है, फिर आप अगले उसमें जो अगली बार यानी कि आप उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे. तो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी अगेन. और इसके साथ जो है आप अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. आई हैव डन इट अ लॉट व्हेन आई वाज अ बिगिनर ऑफ इंग्लिश लर्नर. ठीक है, बट एट दैट टाइम आई डिडंट हैव स्मार्टफोन. ठीक है, तो मैंने क्या किया था एट दैट टाइम, मैंने और मेरी क्लास जितने भी क्लास फेलोज थे, तो हम सब ने एक MP4 प्लेयर ख़रीदा था. वो MP4 प्लेयर एक छोटा सा प्लेयर होता था, उसमें 2-3 बटन्स होते थे और उसके साथ हैंड फ्री होता था. तो वो ख़रीदा था. एंड विद दैट वी रिकॉर्ड आवर वॉइसेस एंड देन वी लिसन टू इट अगैन एंड अगैन एंड देन वी इम्प्रूव. ओके, सो जस्ट लाइक दैट यू कैन डू इट वेल, और बहुत ईजीली आप कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ इसको. ठीक है, तो प्लीज़ गो अहेड विद दिस एक्टिविटी टू. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू रीड. मैंने आपको बताया लिसनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है लैंग्वेज सीखने का. लिसनिंग के बाद रीडिंग है, क्योंकि जैसे आप इनपुट अपने ईयर्स के ज़रिए अपने माइंड को दे रहे हैं ना लिसनिंग के साथ, वैसे ही आप अपनी आइज़ के ज़रिए रीडिंग के साथ देते हैं अपने माइंड को. तो रीडिंग इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट. तो यू शुड रीड एनी इंग्लिश थिंग्स, बुक नहीं. आप आर्टिकल पढ़ना चाहें आर्टिकल पढ़ लें, आप कोई और इंटरनेट पे कुछ पढ़ना चाहें, मैगजीन्स पढ़ना चाहें, नॉवेल्स पढ़ना चाहें, स्टोरीज़ पढ़ना चाहें, तो आपने जो कुछ भी पढ़ना है आप वो पढ़ें इंग्लिश में. डेली बेसिस पे ना सही तो हफ्ते में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ वीक, और अदरवाइज वंस अ वीक. लेकिन आप इसे रेगुलर रखें. एटलीस्ट वंस अ वीक आपने रीडिंग के लिए 1 घंटा अपना निकालना है. ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है. तो आपकी लिसनिंग तो डेली बेसिस पे इम्प्रूव हो रही है, और आपकी रीडिंग भी वंस अ वीक अगर इम्प्रूव होती है तो आपको बहुत सारे जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आएंगी, और इस तरह आपकी
स्पीकिंग पावर भी इम्प्रूव होगी। तो दैट इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ यूट्यूब चैनल्स जिनके साथ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैनल्स हैं और इन चैनल्स के साथ अगर आपने इनकी वीडियोस देखना शुरू कर दी ना तो आपको आप इंजॉय भी करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश टू, क्योंकि ये चैनल्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश जो है वो इस लेवल की है कि बिगनर्स को भी समझ में आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये है वी सॉस का चैनल। ये लोग ना स्ट्रेंज आई थिंक वीडियोस बनाते हैं या फिर कुछ ऐसी रिसर्चिंग वाली वीडियोस बना रहे होते हैं कि जिसमें रिसर्चिंग के साथ ये बता रहे होते हैं। अच्छा, ये तो रील्स हैं। अब जैसे ये है डिड पीपल यूज टू लुक ओल्डर, अब ये किस तरह से लोग ओल्डर नज़र आते थे, तो ये उसके लिए इन्होंने वीडियो बनाई है डू चेयर एग्जिस्ट। इसके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो है और इंटरेस्टिंग इंग्लिश है इनकी, मतलब ऐसी इंग्लिश है जो कि आपको समझ में आएगी। आप डेली बेसिस पे भी इनकी अगर एक भी वीडियो देखते हैं, जैसे 25 मिनट्स के, 22 मिनट्स के, तो अगर आप डेली बेसिस पे भी इनकी एक भी वीडियो देखते हैं और उसे समझते हैं तो दैन यू विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। एंड आफ्टर दैट एक और चैनल है एंड दैट्स माई फेवरेट चैनल, सो दैट इज़ लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज़। इसकी वीडियोस भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें टीवी सीरीज़ से रिलेटेड जो है ना, टीवी सीरीज़ से रिलेटेड इन्होंने वीडियोस बनाई। जैसे मोआना से रिलेटेड, ये पता है क्या करते हैं, ये मूवीज़ से या टीवी सीरीज़ से डायलॉग्स उठाते हैं और उन डायलॉग्स को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर ये बात क्यों की गई है। तो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ एनी ऑफ दीज मूवीज़ और टीवी सीरीज़, ठीक है, सिम्पसन से रिलेटेड है और यहाँ पर हैरी पॉटर से रिलेटेड भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। देखें, सॉन्ग से रिलेटेड है कि सॉन्ग्स में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, क्या क्या डायलॉग्स हैं उनको यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लॉयन किंग के बारे में है, अलादीन के बारे में है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज मूवीज़ और एनी ऑफ दीज सीरीज, सो यू कैन जस्ट गो अहेड विद दीज वीडियोज़ एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, इसकी भी वीडियोज़ आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं एंड विद दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आफ्टर दैट क्लास यू नीड टू लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली, और ये बहुत बोरिंग काम है, ठीक है। डेली बेसिस पे वोकैबुलरी याद करना बहुत बोरिंग काम है। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ टिप, और वो ये है, लेट्स सपोज यू आर सिटिंग समवेयर राइट नाउ, ठीक है, जस्ट वॉच अराउंड योर सराउंडिंग्स, ठीक है, अपने आसपास देखें क्या हो रहा है। somebody is doing something, somebody is cooking, somebody is doing something else। तो जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उसे एक्सप्लेन करें इंग्लिश में, ठीक है। आपको बहुत सारे कॉमन ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनकी इंग्लिश आपको नहीं आती हो। लेट्स सपोज somebody is washing clothes, ठीक है, कोई कपड़े धो रहा है आपके घर में, ठीक है, मेड कपड़े धो रही है। अब वो कपड़े धो रही है एंड आफ्टर दैट शी इज डूइंग समथिंग एल्स। अब उसने कपड़े धोने के बाद कपड़ों को तार पे डालना है, जैसे कहते हैं ना तार पे डालना। अब आप कहेंगे इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी लाइन अप द क्लोथ्स, ठीक है। अच्छा, अब वो अगर कपड़े निचोड़ रही है तो आप निचोड़ने को क्या कहेंगे, निचोड़ने के लिए एक वर्ड है स्क्वीज का, लेकिन वो कपड़े निचोड़ने के लिए यूज नहीं होता, वो लेमन निचोड़ने के लिए यूज होता है। निचोड़ने के लिए जो कपड़े निचोड़ने के लिए जो वर्ड है वो है रिंग द क्लोथ, ठीक है। तो अब वो रिंग, शी इज रिंगिंग द क्लोथ, शी इज लाइनिंग अप द क्लोथ्स। तो यू आर गोइंग टू हैव मोर वोकैबुलरी। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आएगा तो यू विल बी गूगलिंग इट, गूगल करेंगे आप उसे, एंड आफ्टर दैट यू विल बी कम टू नो कि इसके मीनिंग ये हैं, तो आपको एक नया वर्ड मिलेगा। इस तरह से आप डेली बेसिस पे 5 वर्ड्स ले सकते हैं और ये एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि आपने डेली बेसिस पे क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे डिफरेंट जगहों पर इस तरह देखना है कि आसपास क्या हो रहा है एंड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश जस्ट लाइक दैट के यू आर गोइंग टू योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आप अपनी वैन या कार में कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग ना कर रहे हो तो ठीक है, तो आप अपनी वैन या कार में कहीं जा रहे हो और आप बस इधर उधर देख रहे हैं, एट दैट टाइम यू जस्ट
वॉच अराउंड द थिंग्स ना, तो एट दैट टाइम यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स कि क्या क्या हो रहा है आपके आसपास, क्या क्या हो रहा है, तो यू विल बी गेटिंग मैनी कॉमन वोकैबुलरी एंड वर्ड्स, एंड विद दैट यू कैन लर्न द वर्ड्स. अच्छा, आगे चलते हैं. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. स्पेसिफिकली इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में मैंने आपको डेमो में भी बताया था कि इफ़ यू आर अ मोटिवेटेड पर्सन, if you can do practice on a daily basis, so that is the course for you. Other than that, practice के बगैर आपको इंग्लिश नहीं आ सकती. there is no way कि you just dissolve English in the water of a glass of water and after that you just drink it. no, इस तरह इंग्लिश नहीं आएगी. You need to do a lot of practice on a daily basis because we people do not have the environment of spoken English here in our country. So that's why we will have to practice by ourselves. और जितनी मैंने आपको ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके साथ आप खुद से ही काम करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं. आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे किसी के भी साथ की ज़रूरत नहीं है, ना कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, बल्कि आप खुद से इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. अच्छा जी, now class we are going to start learning about some parts of speech because these are the basic grammar things that you need to understand for spoken English. So that's why ये सब हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है. Parts of speech क्या हैं? I am going to tell you about this, but before that you need to understand कि grammar describes English, however it is not English. इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपकी ग्रामर अच्छी ना हो तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते. बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐसा. ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो तो ही आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे. नो, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं. आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग, लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. सो विद दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग टू. ओके, इसकी एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज कि आप में से कोई किसी ऐसी जगह चला जाता है इमीडिएट बेसिस पे. वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे लेट सपोज विद इन अ वीक आपने जाना है किसी ऐसी कंट्री जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे वहाँ जाके? अब आप चले गए, एक हफ्ते के अंदर आप इंग्लिश सीख कर नहीं गए. अब आप वहाँ जाके क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल बी हेजिटेटिंग. ठीक है, पहले ऑफ कोर्स हेजिटेशन होगी, आप किसी से बात नहीं करेंगे. ठीक है, और आप सोचेंगे कि मैं क्या बात करूँ, और आपको किसी की बात समझ नहीं आएगी. एक दो दिन ऐसे ही रहेगा. आफ्टर दैट जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी देन यू गो आउटसाइड, यू टॉक विद द पीपल. ब्रोकन इंग्लिश में आप बात करेंगे, उनसे सॉरी करके बार बार बात पूछेंगे, फिर आपको उनकी थोड़ी बहुत बात समझ आएगी. एक हफ्ता गुजर जाएगा, 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, मैक्सिमम 1 महीना लगेगा. आपको उन लोगों की बात भी समझ में आने लगेगी और आप उनसे बात खुद भी करना शुरू हो जाएंगे. अब आपने क्या किया? आपने क्या इंग्लिश सीखी? आपने क्या ग्रामर सीखी? आपने क्या स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस की? नो, आपने सिर्फ उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया. ठीक है, आपने लिसनिंग की और उस लिसनिंग के साथ आपके जो ईयर्स हैं उन्होंने माइंड में पहुंचाए सिग्नल्स, प्रोसेसिंग हुई और वो सिग्नल्स आपकी ज़बान पर आ गए, तो आपने उसी लैंग्वेज में स्पीकिंग स्टार्ट कर दी. दैट इज़ द वे. ठीक है, सो दैट्स वाई ओनली प्रैक्टिस इज द necessary thing, and with that you can work on your English. Parts of speech क्या है? There are 8 parts of speech, और यहाँ पर articles भी ऐड हो जाते हैं अगर, तो 9 parts of speech होंगे. First, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay, so first of all we need to understand about noun.
हमने हमेशा डेफिनेशन पढ़ी है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. Okay, but there is an addition in this definition, and that is everything in this universe, either you can see it or either not, physical or emotional or anything, everything has a noun. Okay, just like that, this person is a teacher. Okay, it's her common noun, that's a teacher. It's an animal, tiger. Okay, it's a thing, umbrella. It's an idea. Okay, so idea is also a noun. Happiness is also a noun. Okay, but these are not things. These are, you can say these are the emotional feelings. Okay, so everything in this world, physical or emotional or any other thing, these all have the noun. Okay, after that, when we think about singular and plural noun, so we are going to, we have been learning these singular and plural noun from our, I think, nursery levels में भी पढ़ाए जाते हैं singular plural noun. But why I have added this here, there is a reason. Just like that, कि सबसे पहले आप देख रहे हैं book, the plural is books. Then car, plural is cars. Why this S is sound as S and this S is sound as Z? ठीक है, this is books and this is cars, Z sound. So you need to understand that some words has a Z sound in their plural, just like this cars and then this boxes. Okay, so whatever you are looking in front of you, you need to make their plural. Just like there is a laptop in front of me, तो मैं कहूँगी laptop, laptops, S sound. Then a fan, fans, Z sound. A plug, plugs, Z sound. A cup, cups, Z sound. Okay, so just like that, you need to think about some singular and then plural nouns, and you need to do the practice of that. Okay, first, this is your thing to do. आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए हैं, बट आई विल बी टेकिंग द मैसेजेस आफ्टर दिस लेक्चर. ओके, आफ्टर सम टाइम. ठीक है. ओके, काउंटेबल नाउन. Okay, those nouns that can be counted are the countable noun. Just like if you say pen, so you can make them plural as pens. Book, then books. Computer, then computers. You can count them. But uncountable noun are those nouns you cannot count them. Just like sugar, you cannot count the particles of sugar. You can say sugar. Blood, water, you cannot count them. Okay, so these are uncountable nouns, and there are many uncountable nouns you see on a daily basis and you use on a daily basis. Okay, so अब आगे क्या करना है कि uncountable nouns को how we can transform into the countable nouns, और वो हम कैसे कर सकते हैं. Let's suppose water है, मैं कहती हूँ I need some water. ठीक है, तो इसमें मैंने सम जो लगाया है, ये सम बता रहा है कि मुझे पानी कितना चाहिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए. ठीक है, अब मैं कहूँगी आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए. तो वाटर को मैंने ग्लास में कर दिया, और ये अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल में चला गया, जो कि ग्लास शो कर रहा है. आई कैन ऑल्सो से आई नीड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, मुझे 2 ग्लास पानी चाहिए. तो अब वाटर का एक ग्लास नहीं है, 2 ग्लासेस है, तो ग्लासेस से हम मेजर कर रहे हैं वाटर को. After that, we can say a cup of coffee. Coffee is an uncountable noun, लेकिन cup of coffee में आप count कर सकते हैं. आप कह सकते हैं a cup of coffee, a bag of coffee, a pack of coffee, a bottle of coffee, a jar of coffee. Okay, a plate of rice. तो आप राइस को प्लेट से मेजर करें. आप कहते हैं a bowl of rice, a pack of rice, a bag of rice. Okay, so just like that, you can measure some nouns with that. जैसे कि हम कहते हैं a kilo flour,
ठीक है, 1 किलोग्राम हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए। ओके, सो जस्ट लाइक दैट वी मेजर द अनकाउंटेबल नाउन्स दैट यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे किसी से कि आई नीड वाटर, ये अच्छी इंग्लिश नहीं है। ठीक है, अच्छी इंग्लिश क्या होगी कि आप बोलेंगे आई नीड सम वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। लेट सपोज कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आप उससे बोल रहे हैं आई नीड अ स्मॉल बॉटल ऑफ वाटर, मुझे छोटी वाली बॉटल दे दें पानी की। आई नीड अ लार्ज बॉटल ऑफ वाटर, मुझे बड़ी वाली बोतल दे दें पानी की। ठीक है, सो व्हेन यू यूज दीज नाउन्स, इस तरह के जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए आप नाउन्स यूज करते हैं, तो एट दैट टाइम आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव नज़र आती है, आपको बोलने के लिए ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं और आप अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं। सो दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर दैट नाउन को हम, अनकाउंटेबल नाउन को इस तरह से मेजर करके बात करते हैं। यहाँ पर जो 4 नाउन्स हैं, ये जो 4 नाउन्स हैं ये सिंगुलर प्लूरल इनमें नहीं होता। लेट सपोज आप कहते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर का मतलब सारा फर्नीचर आ जाता है, इसमें कोई फर्नीचर्स नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, वो सही है। फिर आप कहते हैं न्यूज़, न्यूज़ सिंगुलर है और प्लूरल दोनों है। ओके, न्यूज़ इटसेल्फ। एडवाइस जो है इसमें कभी भी हम एस नहीं लगाते, हम कहेंगे एडवाइस, प्लूरल भी होगा तब भी कहेंगे एडवाइस। इंफॉर्मेशन इज इटसेल्फ अ प्लूरल चीज़, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, इंफॉर्मेशन को हम काउंट तो नहीं कर सकते, तो हम इसे इंफॉर्मेशन ही कहेंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे। ओके, सो दीज आर सम नाउन्स दैट वी नीड टू यूज एज इट इज। ठीक है, सो क्लास आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। अब मैं पहले थोड़े से आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूँ, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। Imama, you can start speaking your daily routine, ठीक है, and after that you can start speaking about your favorite topic. Let's suppose के you are talking about some drama or some film, or after that you can talk about eat preparation, ठीक है, and after that you can talk about some cooking thing. So there are many other things you can do. ओके, बट यू जस्ट सेलेक्ट योर फेवरेट टॉपिक एंड आफ्टर दैट डू इट। और सबसे बेस्ट तो ये कि आप अपनी डेली रूटीन पे बात करें। या एस एवान, आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस क्लास इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब्दुल राफे, लिसनिंग और स्पीकिंग दो अलग अलग चीज़ें। या दैट इज़ अ गुड ट्रिक दैट यू आर डूइंग। ऑफ कोर्स जब आप कोई भी वर्ड याद करते हैं तो यू नीड टू यूज इट डेलिबरेटली इन योर स्पीकिंग। जब तक आप उसे बार बार यूज नहीं करेंगे वो आपके जहन में बैठेगा नहीं, आपको याद नहीं होगा। ओके, अच्छा, it's up to you, whatever you want to select. फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज मुसीरा इज लिसनिंग। क्योंकि आप देखें लिसनिंग हमारी एक नेचुरल जो स्किल है वो डेवलप करती है। देखें जब छोटे से बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनकी सबसे पहले लैंग्वेज की कौन सी स्किल इंप्रूव होती है, लिसनिंग। शुरू में वो नहीं सुनते और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी लिसनिंग इंप्रूव होती है तो वो लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों के लिए वो टॉयज़ नहीं होते, आवाज़ों वाले जो टॉयज़ होते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि उनकी जो साउंड है ना, साउंड पावर है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। फिर वो सुनना शुरू कर देते हैं। अभी उन्हें बोलना नहीं आया, अभी वो सिर्फ सुन रहे हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो, तो वो उसी चीज़ को हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता रिपीट करना शुरू कर। फिर उन्हें कहा जाता है मम्मा बोलो, तो वो फिर उसी चीज़ को, उसी वर्ड को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें समझ में आ जाता है ये मम्मा हैं, ये पप्पा हैं, ये पप्पो हैं, ये ताया हैं, जो भी है,
ठीक है। तो द थिंग इज दैट आफ्टर दैट दे स्टार्ट स्पीकिंग। सबसे पहला स्किल लिसनिंग है, उसके बाद आपकी स्पीकिंग आती है और रीडिंग भी उसी के साथ साथ हमारी डेवलप होती है, और लास्ट में राइटिंग। ठीक है, इसीलिए ना जो मॉन्टेसरी लेवल पे जो क्लासेस होती हैं उसमें ओरल ड्रिल्स बहुत करवाई जाती हैं, पोम्स पढ़ाई जाती हैं बहुत ज़्यादा, और ओरल सारा कुछ होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे लिसनिंग कर करके, और बार बार पढ़ाया जाता है, बच्चे लिसनिंग कर करके ना उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उन्हें याद हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि उर्दू में पढ़ाएं, लेकिन बेटा मैंने उर्दू तो बहुत सारी यूज़ की है वैसे इस क्लास में, अदर देन दैट मुझे करनी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। और जब तक आप इंग्लिश को समझेंगे नहीं, इंग्लिश बार बार सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी वो इम्प्रूव नहीं होगी। आगे की कुछ क्लासेस में मैं बिल्कुल उर्दू यूज़ करूँगी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ को कवर करेंगे और आपकी क्लासेस इंग्लिश में होंगी, क्योंकि आप जब ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे ना जो मैंने आपको बताया, तो उसके साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आपको इंग्लिश समझने में इतना मसला नहीं होगा। रोज़ाना की बेसिस पे मारिया मकसूद आपने देना है 1 से 2 घंटे, जिसमें आपने ये सारी एक्टिविटीज़ मिक्स अप करके करनी है। कभी आपने मिरर वाली एक्टिविटी करनी है, कभी आपने रिकॉर्डिंग वाली करनी है, कभी आपने वीडियो देखनी है। लेट सपोज आपने 25 मिनट की एक वीडियो देख ली, उसके बाद आधा घंटा 35 मिनट और बचे, तो आपने उस टाइम में अपनी कोई स्पीकिंग की रिकॉर्डिंग वगैरह या कुछ भी कर ली। तो इस तरह आप मिक्सअप करके सारी एक्टिविटीज़ को यूज़ करें। अच्छा भाई, सही। आकिल खान कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया। आकिल क्या समझ नहीं आया, ज़रा आप वो पूछ लें। या आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, और आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा, हमारे पास यहाँ क्लास में बहुत सारे पेड स्टूडेंट्स हैं और कुछ अनपेड स्टूडेंट्स भी हैं जिनको आज की क्लास का लिंक दिया गया है। तो इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन जून जुलाई में तो आप ऑफ कोर्स इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आज हमारी सिर्फ फर्स्ट क्लास थी, इसके बाद आगे हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ मैं बताऊंगी, जिसके साथ आप कुछ ही दिनों में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप एक ऐसा स्किल सीख लेंगे जिस स्किल के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश का एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ एक तरीके से ही आपको अर्निंग नहीं देगा, बल्कि आपको बहुत सारे और तरीके जो है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के साथ आप हर फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा भाई, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है मुझे, लेकिन आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया। अच्छा क्लास, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं कि मैं सारे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। तो अच्छा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी आप लोगों की डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो हम करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन। व्हाट्सएप ग्रुप का जो प्राइवेसी है वो मैं आपकी कल ऑन करूँगी, ठीक है। इंटरव्यू में इंग्लिश बोलने का तरीका, अब्दुल्ला वसीम किस टाइप के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, शकीला आसिम, आपने ये जो बात कही है, द थिंग इज़ दैट हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के बहुत सारे अलग अलग शहरों से हैं, बल्कि कंट्री से बाहर के भी हैं, ठीक है। तो हर टाइम पे किसी ना किसी शहर में किसी ना किसी जगह पे नमाज का टाइम होता है, अजान का टाइम होता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि इस्लामाबाद में एक दूसरे टाइम पे मगरिब की अजान हो रही है, तो कराची में अलग होगी, लाहौर में अलग हो रही होगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को जो है वो टाइम मिल जाता है तो आप आफ्टर नमाज पढ़ लें, अदरवाइज़ हम नमाज का ब्रेक रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो जिसमें हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल मुसीरा, मैं आपको बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी कि जिसके साथ आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अच्छा, आपने एक क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अशर। आस्क का मतलब है पूछना, उर्दू में मैं आपको बता रही हूँ। आस्क माने पूछना, स्पीक माने बात करना, टोल्ड माने कोई चीज़ बताना, कोई इन्फॉर्मेशन देना, बताना, सैड माने सिर्फ कहने के सेंस में आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं इसमें। और इसके अलावा जो है आगे क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। जॉब इंटरव्यू के लिए अब्दुल्ला वसीम कह रहे हैं, तो जॉब इंटरव्यू के लिए आपकी इंग्लिश ऑलरेडी इतनी अच्छी हो चुकी होगी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स कि आप अच्छा सा एक जॉब इंटरव्यू खुद से भी दे सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और देखें, जॉब इंटरव्यू में कुछ नहीं पता होता कि कौन क्या पूछ ले। ठीक है, तो कुछ जनरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ आईक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट और तरीके के भी हो सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये आपके पास इंफॉर्मेशन हो और आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो आपकी इंग्लिश तो ऑफकोर्स इस कोर्स के बाद अच्छी होनी ही है। तो उसके बाद आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट करनी है अकॉर्डिंग टू द फील्ड, जिस फील्ड में भी आप काम करें, एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग योर बेस्ट जॉब इंटरव्यू। ठीक है, अदर देन दैट मैं आपको बहुत सारी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप पे। अच्छा जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये आपका असाइनमेंट है। आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को वॉइस नोट में। व्हाट्सएप पे जो वॉइस नोट होता है वो ग्रुप पे आप भेजेंगे। कल मैं ऑन करूंगी आपका ग्रुप की प्राइवेसी, तो कल आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने वॉइस नोट्स भेजने हैं जिसमें आप बताएंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, व्हाट यू डू एंड योर प्लेस टू लिव। 4 चीज़ें, नेम, क्वालिफिकेशन, व्हाट यू डू एंड योर प्लेस टू लिव। कौन से शहर में आप रहते हैं वो बताना है। ये 4 चीज़ें आप बताएंगे। और ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे वॉइस नोट में शेयर होगा। मुझे टेक्स्ट मैसेजेस नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू लिसन टू योर वॉइसेस, ओके। एंड ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश आर इन द वॉइसेस फॉर्म। तो आप वॉइसेस फॉर्म में इसको अपलोड करेंगे बाद में एफबी ग्रुप पे। अभी तो हमारा जो ये पहला असाइनमेंट है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट होगा। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? Okay. Okay, good. अब्दुल हादी, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, रुक जाए मैं देखती हूँ। असाइनमेंट आपका ये है कि यू विल बी ओपनिंग अप द वॉइस नोट। अच्छा, वॉइस कॉल नहीं करनी है प्लीज़ किसी ने भी ग्रुप पे, वॉइस कॉल नहीं करनी है। वॉइस नोट में आपने रिकॉर्डिंग करके भेजनी है अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपना नेम बताएंगे, अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप क्या करते हैं, और इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं। अच्छा, अगर आप अजरा अनपेड स्टूडेंट्स में से हैं, अभी आपने पेड नहीं मतलब पे नहीं किया है, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होंगी। और अगर आपने ऑलरेडी पे कर लिया है तो जहाँ से आपको अभी क्लास का लिंक मिला है वही ग्रुप है, और उसी ग्रुप में मैं आपको शेयर करूँगी, सॉरी प्राइवेसी मैं ऑन कर दूँगी और आप फिर वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। Anamta, that is not a good thing what you are talking about. AI के जरिए इंग्लिश लिसनिंग, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। AI के जरिए तो आजकल सारे ही काम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा टूल मिल जाता है। वैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी टूल लाइक दैट। अच्छा जी, क्लास आई एम गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सो यू कैन जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग्स अगैन। और अगर नहीं सलमान, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना कि अगर आप सॉरी अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती हो, तो वहाँ पे अब आप कोई इंग्लिश की प्रैक्टिस राइटिंग करके तो नहीं करेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे लोगों को और आहिस्ता आहिस्ता ब्रोकन इंग्लिश बोलेंगे, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। मतलब वो एक जोक याद आ रहा है मुझे कि मतलब एक शख्स होता है, वो जाता है किसी ऐसी कंट्री, अमेरिका चला जाता है वो, ठीक है, अमेरिका चला गया। अब वहाँ से जब वो वापस आता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि वहाँ पे सबसे अजीब बात क्या थी, तो वो कहता है सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ पे बड़े तो बड़े बच्चे भी अंग्रेजी बोलते।
ठीक है। तो अंग्रेज़ी को ना हम लोग समझते हैं कि बहुत कोई हाई फाई चीज़ है। अंग्रेज़ी जो है ऐसी लैंग्वेज है जैसे आप और हम उर्दू बोल रहे हैं, बल्कि हमारी उर्दू बहुत डिफ़िकल्ट है, अंग्रेज़ी तो फिर बहुत ईजी है अगर आप उसके जो बेसिक रूल्स हैं ना वो समझ जाएं। ठीक है, और वो रूल्स ग्रामर से कहीं भी लिंक नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग से लिंक करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेना है, तो उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। आपको राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली आप कोई चीज़ राइटिंग में करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो फिर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज नहीं। असाइनमेंट की क्या एग्जाम्पल दूँ मलिक हमजा? मैं अच्छा ठीक है, मैं असाइनमेंट की एग्जांपल देती हूँ। जैसे माय नेम इज़ शफक आसिफ एंड आई एम अ B.Ed person and I am a mentor of spoken English and also the content writing and linked with the DSC and I live in Karachi. Okay, so this is my example. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने अपने वॉइस नोट्स भेजने हैं। कल मैं आपकी ग्रुप प्राइवेसी ऑन करूँगी। सो क्लास, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, होपफुली यू एंजॉय टुडेज क्लास. It's time to say goodbye to everybody, and from my side, happy Eid in advance. Allah Hafiz.